wait for a while. Okay, I've shared some screen, so it is visible to you or not? It is visible or not? So visible. Yes, Yes, sir. sir. Okay. My vocal is audible? No issue? Yes, कुछ sir. कम ज्यादा तो नहीं लग रहा ना कि बहुत दूर से आवाज आ रही है, इको हो रहा है? No, sir. ठीक है. No, sir. ओके, फर्स्ट मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिलेबस से हम स्टार्ट कर लेते हैं जो हम चल रहा है अभी. So okay, on your screen you can see your first one which we have completed. Superposition we have completed, Thevenin we have completed, Norton we have completed, maximum power transfer we have completed, reciprocity theorem which I taught today, but you did not get it properly, so I will repeat it again. And compensation theorem, and last one is concept of duality and dual networks. So one class is needed here, only one class. Then we will start with basics of AC, not from this solution of first and second order networks. We will start from basics of AC. Basics of AC means like I will start with the inductor, capacitance, and functionality of this. Then we will go for the solution of first and second order networks. Then sinusoidal steady state analysis, and furthermore. So this was your syllabus of subject. And now this is your laboratory. Yeah, this section is your electrical circuit design lab. 100 marks for this lab. Internal assessment 60, external assessment 40 marks. Okay, so this consists credit 2 points for the credit and 4 lectures. 4 lectures means that in a week you will have 4 lectures for this electrical circuit design lab. 4 lecture which has been divided by in 2 categories, 2 for hardware and 2 for software. Okay, the things which I am telling you, please focus on this thing. 4 lectures in a week for your lab, which have been divided 2 for hardware and 2 for software. So this is your experiment list. First one, 12 experiments are here. Wait. Anyone's here? So voice lag हो रहा है. Okay, how are you voice? Clear? Please text me. Voice is clear or not? Clear. Okay. So okay. So experiment number 1, introduction to datasheet reading. Datasheet reading is nothing, it's just a simple thing. Datasheet reading means you should have an ability to understand the parameters. Second one, introduction to soldering process and tool. Simple one. BJT, UJT on breadboard PCB design. Do you know what is breadboard? Have you heard about it? Breadboard? Yes or no? No, sir. No, so it will be very difficult. ठीक है, आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी इसी सेमेस्टर में है ना? डी लैब
DE लैब इस सेमेस्टर में ही है शायद आपके, या नहीं हो क्या पता। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, इनको सबको ब्रेड बोर्ड पे स्टार्ट करना है। ब्रेड बोर्ड होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी तो स्टार्ट नहीं कर रहा मैं कुछ भी। अभी आज जो क्लास है उसमें मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपके हार्डवेयर लैब है। मीन आपके पास बीजेटी का सर्किट बना के हम उसको ब्रेड बोर्ड पे बनाएंगे। बीजेटी का जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम समझ देखो, दिस इज मार्किंग हियर सर्किट डिजाइन लैब, सर्किट डिजाइन लैब दिस इज। सो यहाँ पे आपको मार्किंग आनी चाहिए। ये जो सर्किट डिजाइन लैब है ना, सब कुछ हम ब्रेड बोर्ड पे डिजाइन करेंगे, बीजेटी, यूजेटी, फिर उसके बाद हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, फुल ब्रिज रेक्टिफायर। देन अगेन इन एक्सपेरिमेंट नंबर 5th, simulate regulated power supply. Regulated means and validate on breadboard on PCB. पॉजिटिव रेगुलेशन दे रहे हैं हम इसको 3 वोल्ट से 15 वोल्ट, नेगेटिव में दे रहे हैं 3 से 15 एंड 25 1 to 10। ये सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट है ये सब हार्डवेयर टूल्स हैं, हार्डवेयर पे डिजाइन होंगे सारे के सारे। मल्टी वाइब्रेटर, IC 55555, हमें आपको एक IC मिलेगी, उसके बाद में आपको बीजेटी का सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ये 3 मोड हमको कैलकुलेट करने हैं। सो यहाँ तक तो फैमिलियर हो, यू आर फैमिलियर विद दिस, you are familiar with these 5 experiments. Familiar means like a few words you have heard in your first year lab and etc. 6, 7th, introduction to sensors to measure real-time quantities and their implementation in different process. Hardware implementation of temperature control circuit, thermistor. Again, frequency divider circuit on breadboard. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These are your hardware tools. So if these are your hardware tools, it means that this is not possible by this online platform. If these are hardware practicals, yeah, we will perform this task on hardware tools. So this is not applicable or it is not feasible to present on this online screen. So what we will do in this our circuit design lab. So again, I told you that this electrical circuit lab has 4 lectures in a week, 2 for hardware and 2 for software, 2 for hardware and 2 for software lab. So soon what we are going to do here, we will make some videos of these hardware tools, hardware experiments. What I'm saying to you, we will make, we means we will make some videos of your experiments and then we will provide to you. Then you will get to know that how an experiment is working there, what is breadboard and how we are connecting some ICs there, some how we are creating some circuit design there. You will get to know in that videos. So that video section we will do, but not right now. It will happen after 1 month. So in next 1 month, what we will study some software, means virtual laboratory experiment. We will study some virtual laboratory experiments. So virtual laboratory experiment, these virtual laboratory experiments are extra, are beyond your hardware tools. So I'm again sharing some screen. There you will get to know that how many virtual experiments are there. Wait for a while, I'm facing some problem, network issue here. Sir, system hang हो गया। कुछ नहीं खोल रखा, सिर्फ शेयर कर रहा था विंडो। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं भी PDF शेयर कर रहा था। मैटलैब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी सर, इसमें शेयर करने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल ही हैंग हो गया है।
बिल्कुल सिस्टम हैंग हो गया। I don't know, क्या चल रहा है इसमें। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry for network issue. So I'm sharing some screen again. Yeah, a word file is visible to you or not? Please let me know. A word file is visible to you or not? Yes, sir. Okay, electrical circuit design lab is experiment of 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so now, so these 12 experiments are your in RTU syllabus, these 12, but it is not possible to make you understand without any tool these all experiments. So what we will discuss here, what we will do here, this is our virtual lab. Now on your screen you can see that this is your virtual laboratory experiment. Virtual means, yeah, we can perform the task, the particular task on virtual laboratory. I will share some screen, I will share some virtual laboratory experiments here. Then you will see, you will get to know that how a circuit is performing a task. Easily you will get to know. So here you can see 18 experiments are here. 18 experiments are here. The first one is to verify Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law in virtual lab. Yes, simple one. That sometime you can ask to me that, sir, what is the significance? How we can get to know that performing its task? Mean incoming current plus outgoing current equal to 0.
equals to 0, yeah, we can say incoming equals to outgoing. How we can say that total net voltage equals to 0? So it is true or not? So we can perform this task in virtual lab. Similarly, Thevenin theorem. Okay, now let me ask Sanjay Singh. Sanjay Singh, Yes, sir. थेवेनिन थ्योरम के बारे में बताओ मुझे, क्या करते हैं हम थेवेनिन थ्योरम में? सर थेवेनिन थ्योरम में हम एक इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट निकालते हैं जिसमें VTH अच्छा। होता है, RTH होता है और लोड रेजिस्टेंस या लोड होता है। ठीक है, VTH होता है, एक RTH होता है। अच्छा, कैसे निकालते हैं उसको, कैसे करते हैं हम? तो RTH के लिए तो सर हम सारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स ओपन सर्किट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट सोर्स वैसे का वैसा ही रहता है। नहीं, डिपेंडेंट सोर्स, थोड़ा सा बोलने में गलती आती है आपको। सॉरी डिपेंडेंट। ओके, हाँ। VTH कैसे निकालते हैं? VTH VTH निकालने के लिए सर जो हमारा लोड रेजिस्टेंस हाँ, लोड उसको रेजिस्टेंस सर है। ओपन सर्किट कर देते हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, सारे Exactly सोर्सेज right. ऑन होते हैं। Exactly right. Very nice. Very nice. 2-1. Okay, that was true. So this Thevenin theorem we will perform in our virtual lab. Similarly, Norton we will perform, superposition we will perform, maximum power we will perform, reciprocity we will perform, compensation we will perform. So reciprocity, compensation, Millmans and Teligans. This I will make it. You will get to know that in your next class that how a reciprocity we can do, how a compensation we can do, how a Millman's theorem or Teligans theorem. These two are not in your syllabus. These two are not in your syllabus, but I will teach you. We can say beyond syllabus. So 1 से लेकर 9 एक्सपेरिमेंट, तो एक बार तो अगर मैं बात बोलूं तो आप लोग को बहुत कुछ आ गया, इसमें समझ भी सकते हो। अगर मैं 1 दिन में 2 दिन में कराऊं तो ये पूरे 9 एक्सपेरिमेंट में करवा सकता हूं आपको, राइट? समझ सकते हो? तो थोड़े से फैमिलियर हो इन चीजों से, यस और नो? Yes, sir. सो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे को पूरा ही तुमको 100% समझाना पड़ेगा। ट्यूशन में समझा चुका हूँ आपको। ट्यूशन आप कोई सा भी सर्किट बना सकते हो, कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, ये सब कुछ आप डिजाइन कर सकते हो। उसमें बताऊंगा वर्चुअल लैब में कहाँ पर कैसे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो RL, RC, LC जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो हमारी नेक्स्ट जो क्लासेस चलेगी ना, कुछ करीबन 10 क्लासेस जो होंगी, उसके अंदर आपको ये RL, RC और इससे रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट करना समझ आएगा। तो उधर आप थ्योरी समझोगे और इधर प्रैक्टिकल खुद ही परफॉर्म करने लग जाओगे। उधर आप थ्योरी समझोगे और इधर आप खुद ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लग जाओगे। और लास्ट का जो आपका ये 18 वाला है, ये आपका 5th यूनिट पे डिपेंड करता है, 2 पोर्ट नेटवर्क। तो ये वाला हम अभी नहीं करेंगे। बाकी 17 एक्सपेरिमेंट जो आपकी फर्स्ट जो अगर आपके लैब आएगी ना, तो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा के 17 नहीं तो मैं कम से कम मान के चलता हूँ, कम से कम 13 तो एक्सपेरिमेंट हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो आपका अगर फर्स्ट एग्जाम होता है मिड टर्म एग्जाम, तो उसके अंदर मान के चलिए कि आपकी ये लैब्स के तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, सो हम ये करेंगे पहले, ना कि अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन लैब के जितने भी जो एक्सपेरिमेंट है, इसको कोशिश करूंगा कि अगर मान लो कि हम मेरे पास कुछ वीडियोस के रूप में अगर मिल जाता है तो मैं आपको उससे समझाऊं, या फिर वीडियो के रूप में तो हमको समझाना ही है। बट पहले फर्स्ट वी विल परफॉर्म दिस वर्चुअल लेबोरेटरी टास्क। क्लियर व्हाट वी विल डू इन आवर लेबोरेटरी सेक्शन? किसी कोई डाउट है इसमें, पूछना चाहता है कोई? ओके, सो अब देखो, अभी मैं तुमको सब एड्रेस बाद में समझाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं तुमको कि कहां जा रहा हूं मैं, किस तरीके से कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज योर वर्चुअल लेबोरेटरी लैब, वर्चुअल लेबोरेटरी। ये देखो, अब आप यहाँ देख सकते हो, ये स्क्रीन शेयर हो रही है कुछ, इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्चुअल लैब। इसमें देखो पैरेलल आरसी सर्किट, पैरेलल एलसी सर्किट, थेवेनिन थ्योरम, सीरीज आरएल सर्किट, नॉर्टन्स थ्योरम, किरचॉफ लॉ, सीरीज, पैरेलल, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है।
तो मैं अगर पहला ही एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ किरचॉफ लॉ की, सो देखो, सो सम दिस टाइप ऑफ मीन आपको सब कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे आपके पास यहाँ से देखो किरचॉफ लॉज है, थ्योरी सेक्शन दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है, सेल्फ एवोल्यूशन भी दे रखा है, सिमुलेटर भी दे रखा है, असाइनमेंट, रेफरेंस एंड फीडबैक, सब कुछ दे रखा है. सो KCL, you know that at a particular node, sum of incoming and outgoing equals to 0. So वही चीज दे रखी है आपको. किरचॉफ लॉ के अंदर क्या बता रखा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ. This law is also called Kirchhoff's second law. We can say loop mesh rule. The algebraic sum of all drops and EMF in an closed loop of a network is 0. Means summation of V equals to 0. Here n is a total number of voltage measure. So ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ. अब इसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल है. Let's take an example. सब कुछ आपके रिटर्न मिलेगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपके पास. अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या कर रखा है? 2 से 1 के बीच में, मतलब इसके बीच में आपके पास वोल्टेज कितनी दे रखी है? 2 से 1 के बीच में 45 वोल्ट दे रखी है. अब 2-3 की वोल्टेज निकालनी है, 3-4 की निकालनी है, 1-4 की निकालनी है. आप इजीली निकाल सकते हो. कैसे निकाल लोगे? रुको, कोई जवाब नहीं देगा. लेट मी आस्क. उत्कर्ष शर्मा. उत्कर्ष शर्मा. Utkarsh Sharma, you are online or not? Okay. So for me, you are absent. Utkarsh Sharma is not here. So network issues. किस टाइप का नेटवर्क इशू आ रहा है? बताइए मुझे. उत्कर्ष शर्मा, किस टाइप का नेटवर्क इशू आ रहा है? समझ गए तुम लोग? अटेंडेंस कैसे लेता हूं मैं? ये देख लो तुम्हारी एक्सेल शीट. या you can see here, this is your Excel sheet. So when you enter in class and when you leave, how many times you join and what is the duration of your attending the class and etc. सब कुछ यहाँ कैलकुलेट होकर आता है. अभी 37 स्टूडेंट, 48 में से 37 स्टूडेंट रेगुलर कनेक्टेड है. नॉट क्लियरली विजिबल. अरे यार, मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर में भी अगर विजिबल नहीं हो रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? उत्कर्ष, इतना झूठ नहीं चलता है. स्क्रीन शेयर में तो जितना आपके पास नेट होगा उसी हिसाब से काम चलेगा. तो किसी को कोई डाउट है क्या इस चीज से कि अटेंडेंस सर आप कैसे कैलकुलेट करते हो ऑटोमेटिक? कोई पूछ सकता है अभी? रजनीश, कोई डाउट है अटेंडेंस में? तुमको तो डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम रेगुलर स्टूडेंट हो. जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं और फिर जाते हैं, आते हैं और फिर जाते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट वन इज राधिका. राधिका तांबी. Yes, sir. राधिका, मैं क्वेश्चन पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस. सो अब मुझे आप बताओगे कि यहाँ पे मान लो मुझे V23 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? 23 V23. Sir, या डोंट हेजिटेट. आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाओ, नॉर्मल तरीके से चलो, आपको आंसर मिल जाएगा. बताओ क्या करेंगे हम? sir, V23 मतलब? V23 मतलब इस R1 के क्रॉस हमारे को वोल्टेज निकालनी है. R1 के क्रॉस. ओके सर. तो क्या करूंगा मैं? नॉर्मल प्रोसीजर बताओ जो आप कर सकते हो. डू नॉट हेजिटेट. सर, अपन इक्विवेलेंट करंट. बिल्कुल एग्जैक्टली. योर फर्स्ट वन इज वेरी नाइस. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी नाइस. इक्विवेलेंट करंट निकल जाएगा हमारे पास. V23 यार ठीक है, निकल जाएगा उससे. वैसे V23 निकल जाएगा. करंट तो वही रहेगा. हाँ, मतलब करंट इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, बट वोल्टेज बट डिफरेंट रहेगा सबके तीनों के अंदर. ठीक है. तो वोल्टेज कुछ इस तरीके का निकल गया. वोल्टेज कुछ इस तरीके का निकल गया. अब देखो, इसमें किसी किसी को दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे -10 आ रहा है, -20 आ रहा है, -15 आ रहा है. तो देखो उसने कैसे निकाल रखा है. वो 4 से 3 बोल रहा है. 4 से 3 उल्टा जा रहे हैं ना. तो देखो करंट की डायरेक्शन तो यहाँ थी, तो 4 से 3 तो आपकी वोल्टेज क्या हो जाएगी? रिवर्स में हो जाएगी. क्लियर? 1-4 बोल रहा है. 1 से 4
1 से 4 जा रहा है, तो 1 से 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से चेंजेस आएगा 1 से 4 के लिए हमारे पास। क्लियर? सो देखो, नाउ यू कैन सी, किसी को दिख रहा है ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आगे? कुछ इस तरीके से ही निकालते हैं, जो वर्चुअल लेबोरेटरी होती है ना, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। मान लो एक तो आपने है ना कॉपी पेन लेके सॉल्व किया, और उस क्वेश्चन को आपने ना वर्चुअल लेबोरेटरी में ड्रॉ कर लो। वर्चुअल लेबोरेटरी में बता देगा कि उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ रही है। ये रेड वायर क्या है आपका, पॉजिटिव वाला, ब्लैक वायर क्या है आपका, नेगेटिव वाला। समझ रहे हो ना ये किस तरीके से बता रखा है, प्लस का है, माइनस का है, इसका प्लस का है, इसका माइनस का है। ये रेड वाला क्या बता रहा है, इसका पॉजिटिव पॉइंट, किसका, ड्रॉप का। मतलब 1 पॉइंट पे आपने रेड वायर लगाया और 4 पे इसके लगाया। क्लियर है या नहीं? ये चीज को अभी थोड़ा एनालिसिस करो। ये आपके पास सर्किट बना लोगे आप 1 2 3 4, यू कैन ड्रॉ दिस सर्किट, 1 2 3 4, एंड देन आप ये 4 वोल्ट मीटर लगा सकते हो अक्रॉस, 1 2 3 4, या फिर करंट के लिए एमीटर भी लगा सकते हो, तो वहां से आपके पास ये भी दिख जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन, अगर अभी हमारे पास टाइम बहुत है, अभी हम देख लेते हैं। अब देखो नेट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 0, तो नेट वोल्टेज देख लो 0 हो रही है। E21 45 -10 -20 -15। अब कहता क्या है क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इज नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये ठीक है, तो नॉर्मल चीज है। ये क्वेश्चन दे दिया, देखो एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास बहुत ही अच्छी चीजें बता रखी है। उसमें ये बता रखा है एक 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लिया, R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया, 3 आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में ले लिए, तीनों का अलग रेजिस्टेंस है। ओके, वोल्टेज तो क्या होगा, कोई जवाब नहीं देगा, मैं पूछता हूं किससे, सुतांशु। यस सर। वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर, R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वेट फॉर व्हाइल। हेलो, आजा जी, नमस्कार। बिल्कुल पहचान गए, नंबर सेव है आपका। अभी साइट पे नहीं हो, अभी तो थोड़ा सा ऑफिस में हूँ मुझे। अभी आऊंगा ना मैं 2 बजे बाद आऊंगा वहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं वो करता हूँ 2 बजे बाद। Video tiles can you see? Is it 9? Is it 14? Is it 16 or is it 49? Please use your chat box and share. Ankit sir says 16. Chika ma'am says 49. Wait for a couple of minutes. Yeah, Satanshu. Yes sir. Wait. There's a lot of disturbance. सर 6 वोल्ट ही होगा R1। क्यों होगा 6 वोल्ट, क्यों होगा? सर उसके पैरेलल में 6 वोल्ट है ना। ठीक है। म्यूट करो अपना म्यूट करो इसको। ओके, सो यहां पर इसने क्या कह रखा है, पैरेलल एग्जांपल सर्किट सॉल्विंग द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। ठीक है, IR1 हम निकाल सकते हैं। IR1 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमको पता चल गया कि 6 की वोल्टेज होगी। अगर 6 वोल्टेज हो गई तो हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं IR1। नेक्स्ट वन 3 के क्रॉस में निकाल सकते हैं, तो ये सब कुछ आपके पास निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी सर्किट निकालने के बाद में आपके पास ये किस तरीके से कर दिया इसने। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, इसने नोडल भी लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, तो लगा लेने दो इसको। टोटल भी निकाल दिया, ये हमको कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे आपको सिमुलेटर दिख रहा है। सिमुलेटर में क्या कर रखा है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है 1 ओम का, 3 ओम का, 2 ओम का, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 6 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ ऊपर क्या है हमारे पास 5 एम्पियर कुछ करंट आ रहा है, और यहाँ पे लगा रखा है। तो ऐसा कुछ, अभी मैं सिर्फ एक तुमको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हम ऐसे लेबोरेटरी में हम काम करने वाले हैं। सो
दिस इज योर नॉर्मल किरचॉफ लॉ। उसके अंदर आप आगे देखो, आगे सारे किरचॉफ, जो किरचॉफ लॉ में जो कंपोनेंट काम आएंगे वो सब कुछ देखा है। रजिस्टर काम आता है, लैंप काम आता है। व्हाट इज लैंप? लैंप इज जस्ट लोड। क्लियर ना? लैंप, कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि सर लैंप कहां से आ गया, आपने तो आज तक बताया था। सो लैंप इज नथिंग, जस्ट इट्स अ लोड। और वायर क्या होता है? जो हम रेड वाला यूज कर रहे हैं, स्विच हम लगा सकते हैं। स्विच अभी हम लगाए नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं है हमारे को स्विच के अंदर। और बैटरी हम यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डीसी बैटरी हम यूज कर रहे हैं। वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग द वोल्टेज एंड एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट एंड नॉन कांटेक्ट एमीटर दैट नीड टू बी पार्ट ऑफ। ठीक है, प्रोसीजर समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लो इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि हम वर्चुअल लेबोरेटरी में काम करेंगे। तो फर्स्ट रीड ऑन योर स्क्रीन प्रोसीजर। जैसे अब देखो, एक और चीज है, अभी मेरे को और सब चीजें डिस्कस करनी है। ये कुछ सब एवोल्यूशन क्वेश्चन सही है, इसके आंसर अभी हम यहीं कर लेते हैं। 5 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 ओम रेजिस्टर इन सीरीज, द रिजल्टेंट करंट। कोई नहीं जवाब देगा, मैं जिससे पूछूं उससे पूछूंगा। देख लो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग दिख रहा है आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन? यस। सो सौरभ, मीना, सौरभ, यस सर। फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 2.5। 2.5 I equals to V by R। 2.5 सही है। सेकेंड क्वेश्चन देख लो। सेकेंड मैं किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा। क्वेश्चन सेकंड में जरा डालो, बहुत सिंपल। अगर ये भी नहीं बता पाओ तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता यार मैं तुम्हारा। सर क्वेश्चन मतलब 2 ओम लिख रहा है ना? देखता हूँ एक बार को। विशाल शर्मा, तुम सेकंड क्वेश्चन आंसर दोगे। 5 वोल्ट इज अप्लाइड फॉर 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम, 2 ओम का मतलब हो गया 4 ओम रेजिस्टर हो गया। तो 5 वोल्ट दे रखा है, 1.5 1.25 करीब आएगा आंसर। इसमें दिया था आंसर, गलत बता दिया मैंने भी, ये मिस्टेक कर दी 2 पढ़ने की। ठीक है, 1.25। सेकेंड वन विशाल शर्मा। विशाल शर्मा, सेकेंड का आंसर क्या आएगा? सर तुम या टेक योर टाइम। सर 5। 5, क्या 5 आंसर सही है क्या इसका? यस सर। ओके, यहाँ पे अगर मेरे पास थोड़ा टच स्क्रीन वाला होता तो मैं यही आपके पास स्क्रीन पे ड्रॉ कर देता, लेकिन ऐसी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू है। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस है, तो ये तुम लोग कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अब ये 5th वाला क्वेश्चन है, कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। कौन तो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। तो बी आंसर आएगा इसका। यस, बी आंसर। 6-1 द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये सब आपके सेल्फ एवोल्यूशन का बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज सिमुलेटर। तो इसको तो साइन अप करके मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में करूंगा इसको एक्टिवेटेड। दिस इज योर असाइनमेंट टाइप ऑफ, जो हमको करने हैं बाद में। सो देखो, अब मैं इसको स्क्रीन को शेयर बंद कर रहा हूँ थोड़ा सा, और अब इसके बाद देखते हैं। Yeah. So what I want to tell you that जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट्स दूंगा ना आपको, उसको आपको जैसे आप आपके फर्स्ट ईयर के लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 फाइल में लिखते थे ना, आप लिख के मुझे अपलोड करोगे। क्योंकि देखो अब कब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, कब कैसे होगा सर, जैसे कि प्रोग्राम बना करके सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ वो मैं सिखाऊंगा आपको। वो एक्सपेरिमेंट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अभी क्या, मेरे को इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा वर्चुअल लैब को। देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट दिस। मतलब सर्किट कैसे बनाएंगे, आप कोई सा भी डिफिकल्ट सर्किट ले लेंगे, हम ये टेस्टिंग कर सकते हैं। पता है आप इससे क्या कर सकते हैं? वर्चुअल लैबोरेटरी से आप टेस्टिंग कर सकते हो, आपका आंसर क्या गलत आ रहा है, सही आ रहा है। सो
आपको जितने मैंने पीडीएफ दी थी तो आप उसको वर्चुअल लेबोरेटरी में प्रैक्टिस कर सकते हो, सर्किट ड्रॉ करो, उतने पैरामीटर्स की वैल्यू लगाओ और उसमें आपको पता चल कर लो कि इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। अगर वहां पे गलत आ रहा है तो मतलब आपका आंसर भी गलत है, यू कैन वेरीफाई। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन आई विल गिव यू एक्सपेरिमेंट, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं मैं आपको दूंगा तो आप लोग मुझे उसको हैंड रिटर्न सबमिट कराओगे अपने A4 शीट पे, आप लोग आगे पीछे की तरफ करके उसको सबमिट कराओगे आप लोग। और देखो जिस तरह से अभी कल की न्यूज आई कि अब आपकी इच्छा हो जितने शादी के अंदर आप लोग मेहमान बुला सकते हो, सो इट्स जस्ट लाइक, मेरे को तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट अब थोड़े दिनों के बाद में, आई थिंक दैट गवर्नमेंट थोड़े दिनों के बाद में आपके क्या हुआ, न्यूज़ ये नहीं है तो क्या है सर, उसमें ये है कि जितने मेहमान बुलाओगे तो उसकी 2 गुनी जगह होनी चाहिए। हाँ तो 2 गुनी जगह तो क्या, ये तो सिर्फ पता है क्या है, फॉर्मेलिटी है। ऐसा फॉर्मेलिटी, लेकिन वो तो जो कानून है मतलब जो बनाया है वो तो है ही ना। और देखो पता है ये कानून किस लिए बनाते हैं, ये जो ये बताया ना, ये सिर्फ इसलिए कि अगर मान लो मैं और तुम्हारी राइवलिटी है, थोड़ी सी अपनी झगड़ा हो रखा है, और अगर हमारा झगड़ा हो रखा है तो मान लो तुम कोई मेंबर्स का वो कर रहे हो और फिर मान लो मैं तुम पे कुछ कर देता हूँ, तो उनसे गवर्नमेंट बचने के लिए। अदरवाइज देखो आज की डेट में मैं बताता हूँ 500 प्लस मेंबर्स के तो यूं ही फंक्शन हो रहे हैं, अभी भी रिसेंटली 500 प्लस मेंबर्स के तो यूं ही फंक्शंस हो रहे हैं। सो जितनी स्पीड में जितना ये रिकवर कर रहे हैं चीजों को, तो मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक हमारे कॉलेज खुल जाए। सितंबर तो नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक मैं मान सकता हूँ। तो उस समय जब होगा तब होगा, तो अभी से तुम लोग इस तरीके से रखना कि यही चीजों को तुम बाद में उसमें लगा दो। सो एक्सपेरिमेंट तरीके से करना, देखो खुल जाएंगे तो तुम्हारे को कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट है, मैं खुद परेशान होता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊं तुम्हारे को। तुम लोग भी परेशान हो गए होंगे घर पे। सर फिर भी फील नहीं हो रहा कि मतलब ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में सिर्फ। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमको फील अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ ठीक है डिफरेंस बहुत कम लग रहा है तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा सुन के। ये मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं फिर भी बैठ के तुमको कुछ चीजें बता रहा हूँ, वहां पे मेरे को पूरा सेटअप करना पड़ता है, पूरा लैपटॉप, लैन केबल, टेबल एटसेट्रा। कभी जब ऑफलाइन आओगे तब मैं तुमको दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या सेटअप किया करता था। आई यूज्ड टू डू दैट। सो लेबोरेटरी के लिए तो क्या है, मेरे को यहाँ पे नेट की फैसिलिटी चाहिए पूरी प्रॉपर, और पूरा सिस्टम मेरे को बकायदा चाहिए होता है। तो दैट्स व्हाई मैं लेबोरेटरी तो इसी तरीके से समझाऊंगा। लेबोरेटरी को मैं वहां पे नहीं समझा सकता, मैं आपको समझ रहे हो आप लोग। लेबोरेटरी के लिए मैं वहां पे बोर्ड पे खड़ा होकर मुझे लगता नहीं कि कुछ चीजें मैं समझा पाऊंगा तुमको। लेबोरेटरी यहीं पे तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, यहीं पे मैं तुम्हारे को चलती जाएगी चीजें। सो इस रिगार्ड्स तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं तुमसे 5-10 मिनट तुमसे ऐसे बातें करने के मूड में हूँ, क्योंकि कभी बात करने का मौका नहीं मिल पाता, वरना मैं पहले इंटरेक्शन होना चाहिए। आज आराम से मैं भी बैठा हुआ हूँ तो तुमसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकता हूँ। सो किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि सर रिगार्ड्स लैब, रिगार्ड्स एनीथिंग। सर ऐसे इंटरेक्शन बाकी टीचर क्यों नहीं करते? अब ये मुझे नहीं पता यार, ये मुझे नहीं पता। मैं तुमसे आज बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, मुझे अभी कोई सिलेबस का ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुमको लेबोरेटरी के बारे में बताया और आज तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो कुछ। सर हमारे बैच काउंसलर ने बात नहीं करी अभी तुम्हारे से। ठीक कौन है बैच काउंसलर? मोहम्मद इमरान। अरे यार देखो सब अपने अपने हिसाब से बिजी होंगे, सब अपने अपने हिसाब से बिजी हो रखे हैं, तो मैं भी शायद नहीं मिला उनको भी टाइम। मैं भी कौन सा तुम्हारे से क्लास रहते वक्त बातें करता हूँ, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ वो भी टाइम कम पड़ जाता है। आज लेबोरेटरी में फिर भी टाइम मिला मुझे थोड़ा सा। बैच काउंसलर कौन है? अच्छा घर पे कॉल आया होगा तो पता चला होगा ना कि बैच काउंसलर कौन है। सर हमारे तो जितेंद्र सर है ना, पता ही नहीं, उन्होंने कभी उनसे बात नहीं करी ना। फीडबैक फॉर्म भी उन्होंने ऐसे किसी और के बच्चों के साथ भेजा, फीडबैक भर देना साथ। अच्छा ऐसा था। सर से बात करके भी तो फीडबैक लिया जा सकता है, तो हम बताएंगे कि सर कि उनसी क्लास में कैसा लग रहा है, हमारे सजेशंस मान सकते हैं। सजेशंस के बाद अपनी 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 होती है कि सब टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है। मैं फॉर्म फिलअप करवाने की बात नहीं करता, मैं आपसे ये नहीं बोलता कि फॉर्म फिलअप करो, मैं आपसे ये बोलता कि हाँ तुझे मुझे प्रॉब्लम बताओ तुम तो, कि जो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। अब कुछ चीजें मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता, लाइक तुम बोलोगे सर नेट खत्म हो जाता है, तो यार अब मैं कैसे रिजॉल्व करूँ उस चीज को? हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस थिंग? सर ये डाउट था कि हम लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो ऐसा बहुत 2-3 क्लास के अलावा किसी क्लास में समझ नहीं आता, तो हमारे कॉलेज के बाद में अगर हमारा एग्जाम होता है डायरेक्टली, तो हम कैसे फेस ऑफ करेंगे सर? हम उसका एक ऑप्शन कॉलेज खुलने के बाद में 1 महीने में तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। नहीं, 1 महीने में तो नहीं कर क्योंकि सकते। उसका मैं
उसका एक चीज बता सकता हूँ आपका, चलो आप पहले एक बार पूरा बोलो। कॉलेज में होता है ना, तो ऐसा होता है कि हर किसी भी छोटी सी चीज पर डाउट आ जाता है तो फ्रेंड से भी पूछ लेते हैं, पास में बैठ के, टीचर से पूछना जरूरी नहीं होता है। ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है कि यार खत्म हो तो हो, वरना सर दुखने लग जाता है आंखें डाल डाल के, उसमें ऐसा लगता है बस फेंक दो इसको, क्योंकि नॉर्मल कोई वीडियो देखते हैं तो दिमाग नहीं लगाना होता है, बस वो दिख रही होती है, सुन रहे होते हैं, बट पढ़ रहे होते हैं ऑनलाइन क्लास में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है कि हमें हर चीज देखनी है, हमारी चीज सुननी है ध्यान से। और सर ऐसा है कि बहुत सारे क्लास में ऐसा लगता है कि टीचर आते हैं, वो रीड करते हैं, वो ले जाते हैं, उन्हें वो पूछते भी में समझ आया नहीं आया, पर हमें ऐसा लगता है कि कोई सेंस नहीं उन्हें बोलने का कि हमें नहीं समझ आया, हमने ट्राई करा रीडिंग बोलने का होती तो है भी सर, वो कुछ क्लास में रेस्पॉन्स नहीं रीडिंग है होती कोई। है, पीडीएफ तो फिर पीडीएफ ऐसा रीडिंग लगता होती है है कि जिसमें हमारा करियर ना बर्बाद हो जाए, हम कहीं के नहीं रहने वाले कॉलेज खुलने के बाद। नहीं, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं सीए के अंदर पूरी मेहनत कर रहा हूँ, वो करियर खराब नहीं होगा उसके अंदर। मैं मेरी गारंटी लेता हूँ। उसका रीजन ये रखता है, अदर जो अगर मान लो कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे पीडीएफ चल रही है तो उसका मैं, ठीक है, कई जैसे आपके बैच काउंसलर को रिपोर्ट करोगे तो वो थोड़ा सा एक बार आगे फीडबैक जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया मान भी लिया, था देखो। सर, एक बार बोला भी था, पर अच्छा, सर ने कहा कि देखता हूँ बस, और फिर भूल गए, ना कभी बात हुई ना कुछ हुआ। देखो, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, एग्री भी करता हूँ। चलो ठीक है, मैं भी आपकी जगह होता, अगर मान लो मैं ऑनलाइन पढ़ रहा होता तो बहुत दिक्कत होती, चीजें समझ में नहीं आती, और मशीन जैसे सब्जेक्ट भी नहीं आते, सर्किट भी नहीं आता। देखो मैं खुद आपको बताऊं, मेरे को भी नहीं आता, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना अगर मैं पढ़ाता, कोई टीचर सर भी पढ़ाता तो आपको भी मेरे कैसे को भी पता समझ में मशीन नहीं आ रहा? आता है। क्या कह रहे हो? आपको कैसे पता मशीन नहीं आ रहा? आपने डायरेक्ट वही बोला सब्जेक्ट। मुझे सब पता रहता है, मुझे मतलब सब जानते पता आप रहता भी है। हो, जानते मैं आप भी हो क्या है। सर मैं अलावा भी नहीं आ रहे बहुत सारे मुझे सब्जेक्ट। पता है, मुझे पता रहता है। देखो हम कॉलेज में रहते हैं तो मुझे पता रहता है किस सब्जेक्ट का किस स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो पता रहता है, लेकिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ चीज है, ठीक है, और चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है, सब अपने अपने ऊपर होता है।